آداب عرض ہے، سب سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ 3 روزہ سارک اجلاس کا اختتام، دہشت گردی کے خاتمے اور معاشی تعاون میں اضافے کا عہد۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فروری میں حل طلب مسائل پر دوبارہ بات چیت۔ ریاستی سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن قائم کرنے کابینہ کا فیصلہ، اور سڈنی میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے مابین فائنل کرکٹ ٹیسٹ ڈرا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 12واں سارک چوٹی اجلاس آج اسلام آباد اعلامیہ کی منظوری اور دیگر تاریخی سمجھوتوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ سافٹا یعنی جنوبی ایشیائی آزادانہ تجارتی علاقہ سمجھوتا اور دہشت گردی کے خلاف ایک اضافی پروٹوکول پر بھی دستخط کیے گئے، جن میں رکن ملکوں نے ہر قسم کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے اور علاقے میں آزادانہ تجارت کے مواقع پیدا کرنے کا عہد کیا ہے۔ 3 روزہ چوٹی اجلاس کی اختتامی تقریب میں ہندوستان، پاکستان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ اور بھوٹان کے سربراہان حکومت کی موجودگی میں ان ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ان سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ اسلام آباد اعلامیہ میں جنوبی ایشیائی میں تعاون کے خط و خال دکھائے گئے ہیں۔ دہشت گردی کو کچلنے کی غرض سے 1987 کے سارک کنونشن کے لیے ایک اضافی پروٹوکول پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب ظفر اللہ خان جمالی نے اس پروٹوکول اور سافٹا سمجھوتے کو تاریخی سمجھوتوں سے تعبیر کیا ہے۔ وزیر خارجہ جناب یشونت سنہا نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان آئندہ ماہ جموں کشمیر کے بشمول تمام حل طلب مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے جناب سنہا نے کہا کہ صدر مشرف اور وزیر اعظم جناب واجپئی کے درمیان کل ہوئی ملاقات میں دونوں ملکوں کی وسیع تر بات چیت سے اتفاق کیا گیا۔ دونوں قائدین نے اس احساس کا اظہار کیا کہ ٹھوس اور وسیع تر گفت و شنید سے امن، سلامتی اور عوام کی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس نوعیت کا موقف دونوں ملکوں کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ جناب واجپئی نے ملاقات کے دوران واضح طور پر کہا کہ بات چیت کے عمل کو تیز تر کرنے سے تشدد، اختلافات اور دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے۔ پاکستانی صدر جنرل مشرف نے یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کو دہشت گردی کی تائید کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی نے آج سارک اجلاس کے اختتام کے فوری بعد صدر پاکستان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مہمان نوازی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بات وزیر خارجہ جناب یشونت سنہا نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتائی۔ وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی سارک چوٹی اجلاس میں شرکت کے بعد آج شام پاکستان سے دہلی واپس ہو گئے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے اپنی خیمگاہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات چیت نہیں کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میر ظفر اللہ خان جمالی نے ٹھوس اشارہ دیا ہے کہ وہ سارک کے صدر نشین کی حیثیت سے جلد ہی ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ 3 روزہ سارک اجلاس کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب جمالی نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں سارک کے رکن ملکوں کا دورہ کریں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب کبھی انہیں ہندوستان کے دورے کی دعوت دی جائے گی وہ ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ During a meeting with Prime Minister Vajpayee, he extended any formal or informal invitation to you for a visit to India. And if your answer is in the affirmative, can you tell us if it will be in the near term and also if you've accepted the invitation? Thanks. Mohtamma, I think you probably didn't misstate my answer when Mr. Hamid Mir asked me that. When would you be going? I said when I'm asked to. When it's required. That's about all. There'll be no harm in that. But still, as Chairman SAARC, yes, I will be visiting probably all these countries in due course of time. There's a different platform. I think I will be taking the trips to all these countries. The gentleman at the back. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسلام آباد ہندوستان، پاکستان اور ایران کے مابین زمینی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ جمالی نے بتایا کہ انہوں نے جناب واجپئی سے کہا کہ پاکستان اس پروجیکٹ کا مخالف نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم جناب ایل کے اڈوانی نے وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی اور پاکستان کے صدر جناب پرویز مشرف کی اسلام آباد میں ملاقات کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ آج اخباری نمائندوں سے بات چیت کے دوران سارک چوٹی اجلاس اور جناب مشرف اور جناب ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقاتوں پر تبصرہ کرنے کی خواہش کی گئی تو جناب اڈوانی نے کہا کہ جو اشارے ملے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملاقاتیں اطمینان بخش ہیں۔ جناب اڈوانی نے مزید کہا کہ مزید تفصیلی بیان وزیر اعظم آج دہلی واپسی کے بعد ہی دیں گے۔ نیتا آپس میں ملیں گے تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا، جتنے سنکیت ہیں اس سے لگتا ہے کہ
यह बेल जितना हुआ है वो संतोषजनक हुआ है। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने हिंद पाक मसाइल के हल के लिए जामे बातचीत शुरू करने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फैसले को तारीखी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जनाब वाजपेयी की बसीरत और तदब्बुर की वजह से मुमकिन हो सकी है। सार्क चोटी इजलास के अख्ताम पर आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने जनाब वाजपेयी से कल की मुलाकात के बाद आज सुबह टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने मुश्तरका बयान के 3 अहम नुकात का भी जिक्र किया, जिनमें दहशतगर्दी का खात्मा शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी और सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात का दुनिया भर में खैर मकदम किया गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कोफी अन्नान ने इस मुलाकात का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की कि मुलाकात दोनों मुल्कों के इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिशों को एक नई ताकत अता करेगी। अमेरिका ने कहा कि उसे यह देखकर मसरत हुई है कि दोनों मुल्कों ने 2 साल कबल जंग के दहाने पर पहुंच जाने के बाद पहली मरतबा एक दूसरे से मुलाकात की है। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए पे रिवीजन कमीशन कायम करने का फैसला किया है। रियासती काबीना का इजलास आज हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर जनाब एन चंद्रबाबू नायडू ने क़यादत की। इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए रियासती वज़ीर इत्तला जनाब चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि कमीशन के फ़राइज़ और तरीक़ेकार को ख़तई देने के लिए कमेटी कायम की गई है। कमीशन कोई अबूरी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। काबीना ने किसानों को 5% रिबेट देने और 110 मंडलों को सूखे से मुतासर करार देने का भी फैसला किया है। काबीना में अहम शख्सियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के सदर जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में 11 और 12 जनवरी को मुनक़िद होने वाले बीजेपी के आमिला के इजलास के लिए पार्टी कायदीन ने कमिश्नर सिटी पुलिस और रियासती चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कौमी आमला के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी, नायब वज़ीर-ए-आज़म जनाब एल के अडवाणी, कई मरकजी वज़रा, 7 चीफ मिनिस्टर्स और दीगर कई कायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी कायदीन मिसेस इंदरसेन रेड्डी, जनाब शेषगिरी राव और डी लक्ष्मण भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने गुंटूर जिले में आज से बस यात्रा के 5वें मरहले का आगाज किया, जिसका मकसद तेलुगु देशम हुकूमत के खामियों और नाकामियों को अवाम के सामने उजागर करना है। यात्रा का आगाज माचरला टाउन से हुआ, जो शाम गुंटूर पहुंचकर जल्द से आम में तब्दील हो जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और रियासत के तंजीमी इंचार्ज जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि जब भी इंतखाबात हो उनकी पार्टी सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम में गरीब दुश्मन जमात है, जिसको अवाम इख्तिदार से बेदखल करने के ख्वाहां है। बस यात्रा की क़यादत साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स जनाब एन जनार्दन रेड्डी, जनाब एन भास्कर राव, सदर प्रदेश कांग्रेस जनाब डी श्रीनिवास और जनाब वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की। बस यात्रा के दौरान मुख्तलिफ जलसों को मुखातिब करते हुए जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि रियासत में किसान गुर्बत के बास अपने गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर तरक्की के नाम पर फ्लाई ओवर्स की तामीर में मसरूफ़ हैं। उन्होंने इंतहा पसंदों से बातचीत से इनकार के लिए चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की। गिरिजन संगम ज़रई मजदूरों की तंजीम और दीगर इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज साबिक़ रुकन असम्बली जनाब एस राजैया की क़यादत में रियासती गवर्नर जनाब सुरजीत सिंह बरनाला से राजभवन में मुलाकात करके उन्हें एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में मुतालबा किया गया है कि बीड़ी मजदूरों को रियासती हुकूमत ज़्यादा मुराद दे। हुकूमत बीड़ी पत्तों के जरिए जो नफ़ा हासिल कर रही है वो बोनस के तौर पर बीड़ी मजदूरों को दिया जाए। हर 50 पत्तों पर मुश्तमिल बंडल के लिए ₹1.25 की शराब मुकर्रर की जाए। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब उसादा पोताका ने आज आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी का मुआयना किया। उनके हमरा न्यू जर्सी अमेरिका के जनाब सैयद आरिफ हुसैन भी थे। जनाब उसादा ने उर्दू एकेडमी को मशवरा दिया कि वह आला म्यारी किताबें शाये करें। उन्होंने माहनामा कौमी ज़बान की इशात और मज़ामीन के इंतखाब पर इजहार मसरत किया। सदर एकेडमी जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती ने उन्हें उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी से वाकिफ कराया। मुजव्वज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुमताज़ मिज़ान निगाह डायरेक्टर एकेडमी जनाब मोहम्मद सिद्दीक और दूसरे मौजूद थे। ऑल इंडिया आकाशवाणी एंड दूरदर्शन SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन हैदराबाद यूनिट के ज़ेर एहतमाम 23 जनवरी को हैदराबाद में यूनिट का पहला साउथ जोन कन्वेंशन मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद के डायरेक्टर जनाब प्रसाद राव ने कन्वेंशन के लिए तैयार करदा पोस्टर्स का आज रस्मी इजरा अंजाम दिया।
convention on 23rd January. మీరు ఎందుకు చేశారు ఈ తప్పులన్నీ చేతగాని ఎందుకు చేశారు డివైడ్ చేశారు వర్క్స్ ఒక పాంప్లెట్ లాగా దాంట్లో రాశారు లేకపోతే ముందే చెప్పండి నేను ఈ పని చేయలేను ఈ కమిటీ వాళ్ళు మాత్రం ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के माबैन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौथा और फाइनल क्रिकेट टेस्ट आज ड्रा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने कल के 10 रन के स्कोर के आगे खेलना शुरू किया और जीत के लिए दरकार 433 रन का निशाना पूरा करने के लिए जारहाना बैटिंग शुरू की। कैप्टन स्टीवन ने साइमन कैटेज की 5वीं विकेट की रफाकत में 142 रन जोड़ते हुए हिंदुस्तान को अपनी पहली सीरीज जीतने से महरूम कर दिया। कैटेज ने 77 रन बनाए। खेल के खत्म तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान से 357 रन बनाए थे, जबकि अभी इसे टेस्ट जीतने के लिए 86 रन दरकार थे। सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच और राहुल द्रविड़ को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव वॉज, जिन्होंने 18 साल तक क्रिकेट की दुनिया में अपने गहरे नुक्श छोड़े हैं, अब टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। सिडनी टेस्ट मैच के अख्ताम पर उनके एजाज में मुतासिरकुन विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने अपनी 18 साल क्रिकेट की जिंदगी में 32 सेंचुरियां बनाई और सिडनी के मैदान पर एक और निस्फ सेंचुरी बनाते हुए उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरियों की तादाद को 50 तक पहुंचा दिया। आज भी अपने आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 80 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को फिर एक बार शिकस्त का सामना करने से बचा लिया। स्टीवा ने आज हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के शानदार मुजाहरे की सताइश की है। और अब दर्जे हरारत पर एक नज़र, जो रियासत के 4 बड़े शहरों में आज रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 27.1 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16.5 डिग्री सेल्सियस, विशाखापट्टनम 27.2 और 18, विजयवाड़ा 28.7 और 17, तिरुपति ज़्यादा से ज़्यादा 29.5 और कम से कम 19.6 डिग्री सेल्सियस। अहम सुर्खियाँ एक बार फिर। 3 रोज़ा सार्क इजलास का इख्तिताम, दहशतगर्दी के खात्मे और माशी ताउन में इजाफे का अहद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फरवरी में हलतलब मसाइल पर दोबारा बातचीत। रियासती सरकारी मुलाजमीन के लिए पे रिवीजन कमीशन कायम करने काबीना का फैसला। और सिडनी में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन फाइनल क्रिकेट टेस्ट ड्रा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शब बखैर।